हाँ स्क्रीन शेयर हो रही है आपको, स्क्रीन दिख रही है? ओके देन, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन. So today we are doing the concept regarding the nullity of marriage. Till now we covered in the last class source and marriage in both Hindu and Muslim law. Now we are be going with the how the marriage is valid, void and voidable. तो सेम क्राइटेरिया रहेगा. वी गो विद द बोथ हिंदू एंड मुस्लिम नॉट टुगेदर. वी जस्ट हैव टू बी फोकस्ड विद एंड डोंट बी गो इन दैट कि कुछ कवर हुआ नहीं हुआ. कंसेप्ट हमने क्लियर करने हैं और एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से पढ़ना है. अगर हम बात करें वाइड और वाइडेबिलिटी ऑफ मैरिज की, स्पेशली इन मुस्लिम लॉ, तो बहुत ब्रॉड है. वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू गो एट दैट मच ऑन अ डेप्थ. वी जस्ट गो विद द कि व्हाट्स द एसेंस ऑफ द कंसेप्ट एंड व्हाट द कंसेप्ट वांट टू टेल अस. ओके, now we start about the nullity of marriage. देखो, there are two concept रहेगा, three things regarding the valid marriage, void marriage and voidable marriage. If I first discuss about that the general principle regarding all of them, valid marriage is a completely valid. Circumstances जितने भी essential requirements थे, जो भी whether be a Hindu law, whether be a Muslim law, all have been done. It's a complete valid marriage. But if I go with the void marriage, void marriage is like that marriage where the some basic and essential ingredients are not be fulfilled. कुछ essential ingredient आपने fulfill नहीं करे, then that marriage are the void marriage. And that void marriage is void ab initio. वो very first day से void होगी. समझ रहे हैं आप? वो हमेशा से ही void होगी. वो ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने जब वॉइड डिक्लेयर करी तब वो वॉइड ही, वो थी पहले से ही वॉइड, बट कोर्ट क्या कर रहा है, उसको मैनिफेस्ट कर रहा है. कोर्ट उसको डिक्लेरेशन दे रहा है कि हाँ ये वॉइड है, उसको सर्टिफाइड कर रहा है वो शुरू से ही वॉइड. ठीक है. एंड व्हेन वी थिंक अबाउट द वॉइडेबल मैरिज, द मैरिज इन विच द वेदर इट इज वॉइड और नॉट वॉइड, इट डिपेंड अपॉन द वन पार्टी. जब एक पार्टी के ऊपर ये बात डिपेंड करती है तब वो वॉइडेबल मैरिज होती है. In this case, you have to be required the certificate from the court regarding the voidability of a marriage. Otherwise, valid तो वो है ही. Voidable marriage always be treated as a valid marriage until and unless they get the certificate from the court and declare that marriage as a void marriage. जब तक कोर्ट उसमें void marriage का कंसेप्ट नहीं देती तब तक वो वैलिड रहेगी. क्लियर? On that ground, we are going to read what are the grounds of void marriage. Void marriage हिंदू लॉ में कब कब होगी? First of all, if we do the second marriage, we are completely against the polygamy. If any spouse, any person already have a living spouse, then he cannot make a marriage. एक शादी का कंसेप्ट है, स्पाउस अगर है तो अगर आप दूसरी शादी करते हो, that always be treated as a void. Very ab initio. अब जो सेकंड स्पाउस आई है, जो दूसरा आपने शादी करी है, उसमें आपके पार्टनर को कोई राइट नहीं मिलेगा, कोई भी मैरिटल राइट्स यू विल नॉट बी गेट. क्लियर? Then the spinner relationship are also void, prohibited degree is also void, and if there is a ceremony required, as I told you in the last class कि whenever you do the Hindu marriage you have to be follow the any type of ceremony. कोई सी भी ceremony हो सकती है शादी के लिए, चाहे वो वाइफ की तरफ से हो चाहे वो हस्बैंड की तरफ से हो, but you should follow at least one ceremony जिससे रिक्वायर्ड हो. हमारे यहाँ शादी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इट्स अ सैक्रेमेंट, इट्स अ रिलीजियस थिंग विच यू नीड टू बी फुलफिल. तो अगर आप वो फुलफिल नहीं करते, खाली रजिस्टर्ड करवा लेते, इट्स नॉट अ वैलिड मैरिज, इट्स अ वाइड मैरिज. एंड द हिंदू लॉ इज कंप्लीटली सेड दैट द बोथ ऑफ द पार्टी शुड बी हिंदू. इफ देयर इज वन ऑफ द पार्टी इज नॉन हिंदू, द मैरिज इज वॉइड अंडर दिस एक्ट. इस एक्ट के तहत वो वॉइड होगी. किसी और एक्ट में आप उसको फुलफिल करा लेते हो, किसी और लॉ में चले जाते हो, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. अगर आप कहते हैं कि एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट, and if one party is not Hindu, then that marriage act completely treated that marriage as a void marriage. Clear? So if you want to take the any privileges and advantage of the Hindu law, first you have to Hindu, both of the parties should be Hindu, then they get the marriage as per the any ceremony which the Hindu law is required, then you get the valid marriage. नाउ इफ आई कम विद द मुस्लिम लॉ, वही तीन बातें हैं, कॉन्सैनिग्यूटी, एफिनिटी एंड फॉस्ट्रे, जो हमने लास्ट टाइम बताई थी कि क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है. अगर इन तीनों चीज़ों में मैरिज होती है, दैट विल बी डिक्लेयर्ड एज अ कंप्लीटली वॉइड मैरिज. ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द वॉइड मैरिज. नाउ वी कम विद द वॉइडेबल मैरिज. व्हेन द मैरिज इज वॉइड और नॉट वॉइड डिपेंड अपॉन द वन पार्टी, दैट इज द वॉइडेबल मैरिज.
अवॉइडेबल मैरिज के क्या क्या ग्राउंड है? ऑन अकाउंट ऑफ इम्पोटेंसी, द पार्टी इज इम्पोटेंट, गेट इट? ऑन अकाउंट ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, पार्टी इज नॉट इन अ साउंड माइंड. ऑन अकाउंट ऑफ प्रेगनेंसी एट द टाइम ऑफ मैरिज, की वैन यू डू द मैरिज the one of the that girl is a pregnant and you are not aware about it, you are not know that that girl is a already pregnant. So on that ground you can treat it that marriage as void if you want. If you are ready with that ki whatever be the pregnancy I will be accept that child, I have no issue with that, then the marriage will be okay. And the petitioner consent was obtained by force and fraud टू द नेचर ऑफ सेरेमनी. आपने जो पिटिशनर की कंसेंट ली है, कोई भी पार्टी हो सकती है, आइदर बी अ बॉय आइदर बी अ गर्ल, अगर उसकी जो कंसेंट हमने मैरिज के लिए ली है, इफ़ यू रिमेंबर कि कंसेंट जो थी इसेंशियल रिक्वायर्ड थी, अब वो कंसेंट आपने फोर्स और फ्रॉड के थ्रू ली है, या तो फोर्सफुली ली है, कॉइजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, एंड द फ्रॉड इज लाइक यू कंसील समथिंग, यू से समथिंग फॉल्स, यू से डू द एनीथिंग रॉन्ग विद द एक्ट. आपने कुछ भी झूठ बोला उसके थ्रू अगर आपने वो कंसेंट ली है, दैट मैरिज आल्सो बी ट्रीटेड एज अ वॉइड मैरिज, वॉइडेबल मैरिज. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इफ यू रिमेंबर कि भाई कंसेंट अगर फ्री नहीं है, देन द इट्स डिपेंड अपॉन द हुज पार्टी हुज कंसेंट आर टेकन अंडर द फोर्स एंड फ्रॉड. अगर वो पार्टी रेडी होती कि चलो कोई बात नहीं, जो मेरे साथ फ्रॉड हुआ या नहीं हुआ, नाउ आई विल बी विद यू, तो वो वैलिड रहेगी. अगर वो पार्टी कहती कि नहीं यार मेरे साथ तो फोर्स हुआ है, फ्रॉड हुआ है, आई विल नॉट बी गो विद दैट रिलेशनशिप वेयर द फ्रॉड इज अकर विद मी, तो वो मना कर सकती है. सिंपल इज दैट. मुस्लिम लॉ में कुछ थोड़े से अलग लॉ है. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इद्दत पीरियड. इफ यू मैरी विद द वुमेन हु इज अ इद्दत, हु इज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल विद देम आइदर बी अ और बी अ हु इज इन अ प्रेग्नेंसी एट दैट टाइम, दैट मैरिज इज वॉइडेबल मैरिज. ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन वायलेशन ऑफ द मैरिज, डिफरेंट रिलीजन है अगर, तो वो वॉइडेबल मैरिज ट्रीट हो सकती है. जैसे कि सपोज दो बंदे जो शादी कर रहे हैं, दोनों मुस्लिम नहीं है, एक किसी और धर्म से, तो वो वॉइडेबल रहेगी. अगर वो मेल या फीमेल अपना रिलीजन कन्वर्ट करके मुस्लिम में आ जाता है तो वो वैलिड है, ठीक है, तो वो वैलिड रहेगी. विदाउट विटनेस मैरिज है, वो भी वॉइडेबल रहेगी. विद द फिफ्थ वुमेन, देखो 4 शादियों का अलाउड रहता है इन अ मुस्लिम लॉ, यू आर अलाउड टू बी गेट द 4 वाइफ. नाउ यू गेट द मैरी विद द फिफ्थ वाइफ, एक और वाइफ के साथ आपने मैरी कर लिया, तो अब क्या होगा कि कोई एक टाइम पीरियड है उनका, विद इन द 6 मंथ they have to be divorce, they have to give the divorce to the any 4 one. बाकी चारों में से किसी एक को डिवोर्स दे दे तो फिर उस पर 4 वाइफ रह जाएंगी, देन इट विल बी अलाउड. या फिर उनमें से कोई 6 महीने के अंदर मर जाए या कुछ हो जाए, एनीथिंग दैट द थिंग्स. और ये 6 मंथ जो है ये एसेंशियल लॉज नहीं है, कहीं पे इसको ज़्यादा टाइम भी दिया गया है. इट डिपेंड अपॉन द पार्टीज टू पार्टी, ठीक है. मैरिज परफॉर्म्ड इन द वायलेशन ऑफ रूल अगेंस्ट अनलॉफुल कंजंक्शंस. कुछ सम ऑफ द रिलेशनशिप आर प्रोहिबिटेड विद यू, जैसे कि इफ यू रिमेंबर दैट इन एफिनिटी वी टॉक दैट वी कैन नॉट मैरी द गाय, मैरी द पर्सन हु विद whom द माई वाइफ्स आल्सो कैन नॉट बी मैरी. जिससे मेरी वाइफ का मैरिज का रिलेशन नहीं हो सकता, उससे मेरी भी शादी नहीं हो सकती. बट सपोज आई डिवोर्स्ड माई वाइफ, देन आई कैन मैरी टू हर, लाइक कि आई मैरी टू सिस्टर ऑफ माई वाइफ, she is come in affinity, but now I give the divorce to my wife, then the sister of my wife and me are get the validly wedlock, है ना. तो that thing is also allowed, ठीक है. थोड़ा सा एक मैट्रिमोनियल कॉज एक्ट में 1973 मैट्रिमोनियल कॉज एक्ट में कुछ ऑब्टेन फोर्स कंसेंट ऑब्टेन थ्रू फोर्स एंड फ्रॉड के 2-3 एग्जांपल्स दिए गए हैं. जैसे कि आपने सेरेमनी को फोर्सली करवाया या फिर फ्रॉडली करवाया, पार्टी की आइडेंटिटी में आपके साथ कोई दिक्कत होगी, कंसील कर दिया आपने डिसीज एंड डिफॉर्मिटीज़ को, रिलीजन और कास्ट नहीं बताई, अनचेस्टी नहीं बताई, इलीगल बर्थ, इलेजिटिमेट बर्थ के बारे में नहीं बताया, एज आपने सही से नहीं बताई, फाइनेंशियल स्टेटस, जॉब, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग आपने फ्रॉड करा, प्री मैरिज स्टेटस आपने नहीं डिस्क्लोज करा, एंड एनी डिवॉइड ऑफ फीमेल ऑर्गन्स, वाइफ बीइंग अ डिवॉइड फीमेल ऑर्गन्स है, फ्रॉड ऑफ थर्ड पर्सन है, फिजिकल और मेंटल इम्पोर्टेंसी है, दैट थिंग्स आर कैन बी ट्रीटेड एज द फोर्सफुल कंसेंट एंड द फ्रॉड कंसेंट. नाउ वी क्लियर विद द वैलिड एंड वॉइडेबल. देखो वैलिड तो है ही, उसके बारे में तो पढ़ना है क्या, दैट इज द कंप्लीटली वैलिड मैरिज, वो उसके सेंसेस हमने पहले पढ़ लिए. क्वेश्चन रेज होता है वॉइड और वॉइडेबल मैरिज में. अब वॉइड और वॉइडेबल मैरिज होगी एंड द चिल्ड्रन हैज बीन बोर्न दैट मैरिज,
व्हाट्स द स्टेटस ऑफ दैट चिल्ड्रन, क्या वो लेजिटिमेट चाइल्ड है या इलेजिटिमेट चाइल्ड है। तो Hindu law is very clear with that कि the child who brought up and bring up from the void and voidable marriage are completely legitimate child, वो legitimate है, जायज बच्चे हैं। कोर्ट एंड लॉ नेवर बी फेवर इन फेवर ऑफ इलेजिटिमेसी, वो नाजायजता के बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। और भाई फॉल्ट आपका है, आपने कुछ गलती करा, उसकी सजा बच्चे को नहीं मिलेगी, सिंपल इज दैट। चाइल्ड कंप्लीटली वैलिड है और यू कैन नॉट बी टेक द राइट ऑफ दैट चाइल्ड। हिंदू सक्सेशन एक्ट आल्सो इन हिज फेवर, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट आल्सो इन हिज फेवर। तो सेक्शन 8 हिंदू सक्सेशन एक्ट आल्सो प्रोवाइड दैट द ही हैव द सेपरेट राइट इन हिज फादर्स प्रॉपर्टी। थोड़ा सा अब एक बार फिर से मुस्लिम लॉ में आएंगे। मुस्लिम लॉ में वैलिड मैरिज को सही मैरिज बोला जाते हैं, वॉइड को बातिल एंड वॉइडेबल को इर्रेगुलर और फासिद मैरिज। यू हैव टू बी remember these names. So what they write that this is performed in violation of perpetual immediates under the Sunni law, all immediates under the Shia law. A batil marriage is no marriage, it is the void ab initio, no legal consequences occur from it, so the marriage performed in violation of rules of consanguinity, fosterage and the affinity is a void marriage and no legal action provided under Muslim law. मुस्लिम लॉ के अंदर अगर कोई मैरिज वॉइड मैरिज प्रूव होती है तो वो वॉइड एब इनिशियो है और उसमें कोई लीगल एक्शन नहीं मिलेगा। इन एनी टाइप ऑफ लीगल क्लेम यू कांट बी मेक एनी डैमेजेस विद यू, गेट इट। एंड इन अ इर्रेगुलर मैरिज हैज नो इफेक्ट बिफोर कंजम्पशन। अब इर्रेगुलर मैरिज हुई, वॉइडेबल मैरिज है, अगर वॉइडेबल मैरिज होने के बाद कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ, कंज्यूमेशन नहीं हुआ, then it will be have no effect with it. But if you occur the any sexual intercourse with the partner, make any consummations, then the party have a right. Either the party terminate at any time, either or before the consummation by expressing intention. The Shia law does not recognize irregular marriage and marriage performed in violation of perpetual temporary impedance. तो ये क्या कहते हैं कि सुन्नी के अंदर तो voidable marriage का कंसेप्ट है, पर सिया के अंदर तो वॉइडेबल की बात है ही नहीं। सिया कहती है या तो वैलिड या वॉइड, वॉइडेबल कुछ नहीं होता, ठीक है। सुन्नी उसको मानते, सुन्नी क्या कह रही है कि अगर कंज्यूमेशन नहीं हुई तो कुछ हुआ ही नहीं, तो ये समझो कि वॉइड मैरिज है, लेकिन कंज्यूमेशन होगी तब उस पार्टी का राइट उस पर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। बिफोर कंज्यूमेशन दोनों ही पार्टी में से कोई भी एक दूसरे को छोड़ सकता है। दैट इज द थिंग विद द मैरिज। Till now we covered the source of law and the essentials of marriage and void, valid and voidable concept of the marriage. Now I come with the judicial separation and divorce. Judicial separation and divorce are the two remedies of your abusive relationship. You are not happy with your relationship, you are not happy with your partner, then what thing is left with you? You can get the two remedies in the form of a judicial separation and divorce. Judicial separation is the pre-stage from the divorce. Before getting divorced, you can take the remedy of judicial separation, that now I live separately from to you and now I have no any obligation, no any matrimonial obligations in respect of my partner. That is a judicial separation. You are not get divorced, you are still status have the marriage life, you are still have the married status, but you are separate from your partner. Get it? आप अपने पार्टनर से सेपरेट हैं, पर आप शादी अभी दूसरी नहीं कर सकते। आफ्टर डिवोर्स यू कैन डू द रीमैरी एंड मैरी विद एनी गाय, बट ड्यूरिंग द जुडिशियल सेपरेशन इफ यू डू द मैरिज यू विल बी फाइल्ड एंड चार्ज अगेन विद द बाइगेमी। गेट इट? सो दोनों ही ये ग्राउंड्स हैं एंड डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन डिवोर्स हैव द सेम ग्राउंड, उनके सेम ग्राउंड्स हैं, उन दोनों में से किसी भी रेमेडी को आप अप्रोच कर सकते हो सेम ग्राउंड्स पे। दीज आर द मैट्रिमोनियल रेमेडीज। इफ आई गो विद द मेंटेनेंस, व्हाट्स अबाउट द मेंटेनेंस? तो मेंटेनेंस का क्या है कि काफ़ी सारे लॉज वी ऑलरेडी हैव अवेलेबल रिगार्डिंग द मेंटेनेंस। सेक्शन 7 ऑफ द डिवोर्स एक्ट, सेक्शन 37 ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट, 26 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, 41 of the Parsi Marriage and Divorce Act. Apart from that, 125 of the Criminal Procedure Code, but I think it's changed now. CRPC has been transmitted in the भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, तो अब तो उसका लॉ कुछ अलग होगा. लेट मी चेक इट, लेट मी कंफर्म इट आल्सो विद द क्लास. गिव मी अ मिनट प्लीज.
125 नाउ इट्स अ 144 सेक्शन 144 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम also give the ground also give the right to alimony and maintenance in a Hindu law. Whether you are the void marriage, voidable marriage और वैलिड मैरिज, इन तीनों में से किसी में भी आप डिवोर्स लेते हैं, आपको मेंटेनेंस का राइट है. By virtue of section 26, you can get the maintenance in any case. If the court pass a judgment, any decree in a Hindu Marriage Act regarding the conditions of the marriage, then the court also make the right of alimony and maintenance to the party. And section 144 of CRPC is the secular section. It provide to the both all religions, not only both, all religions, Hindu, Muslim, Parsi and anyone else, Christians, they can approach the section 144. So Muslim women one have the right of the section 144 and the Muslim Maintenance Marriage Act, she also have there is another right regarding that. That is the हाँ जी मेंटेनेंस में पहले तो 125 था ना सर. हाँ अब 144 हो गया है, जो नया लॉ आ गया ना भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, वो नया वाला लिखना पड़ेगा सर. हाँ नया वाला, इसलिए मैंने 144 लिखवाया. अभी नया वाला याद रखिए, अब वो 144 में आ गया है. वो सेम ही है, 144 से लेके 146 तक है. पहले 125 से लेके 127 तक था, अब 144 से लेके 146 तक है. हाँ नए वाले लर्न करने हैं अब तो मैम. ठीक है जी. अनदर थिंग इज दैट कि हाँ मेंटेनेंस में हम बता रहे थे कि नॉट ओनली विद दैट कि मेंटेनेंस का जो अमाउंट है ना, काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कि मेंटेनेंस का अमाउंट कितना होगा. तो एक बात बड़े ध्यान से समझ लें कि मेंटेनेंस जो है वो पेनल नेचर नहीं है उसका. हम इतना बड़ा अमाउंट नहीं लगाएंगे कि वो पेनल नेचर में शो आउट हो. वी मेक द maintenance amount on the basis of the living standard of the party. As much as the whatever the living standard of the man, he also have to provide the same living standard to the woman. जैसा same living standard है, capacity है, that will be provided to. And the court also measure the condition of both of them. If the one is the one of the independent guy, independent girl, then they not allowed to get the maintenance as much as they demand. जितना रिक्वायर्ड रहेगा, बेसिक रहेगा, रिजाइम रहेगा, वही मेंटेनेंस मिलेगा. इट्स अपॉन योर जॉब, इट्स अपॉन योर इंडिपेंडेंसी, इट्स अपॉन योर वर्किंग कल्चर, इट्स अपॉन योर एजुकेशन, लिटरेसी एंड रिक्वायरमेंट. और कंसेप्ट कोड का मेनली यही है कि जैसा एक पार्टी का लिविंग स्टैंडर्ड है, दूसरी पार्टी को भी वही लिविंग स्टैंडर्ड दिया जाए. ठीक है. सो दैट थिंग आर विद द डिवोर्स रिगार्डिंग ऑफ द maintenance. Some of the things like immorality, unchastity, adultery, conversion, these are be also a ground of divorce. Renunciation, abandonment and repudiations. We renounce from the world, we left the wife, then they are free to remarry. म्यूचुअल कंसेंट के साथ भी डिवोर्स होता है. और स्पेशल इनेक्टमेंट भी है, कुछ स्पेशल लॉज रिगार्डिंग द स्पेशल कम्युनिटी से. अच्छा एक चीज़ और बतानी थी, जो मैंने अभी बताया, वॉइड मैरिज में स्पिंडा और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में अगर कोई मैरिज करता है तो वो वॉइड रहती है. ठीक है. इसमें थोड़ा सी एक चीज थोड़ा ध्यान में रख लेना कि अगर आपका कस्टम अलाउ कर रहा है, इफ यू प्रूव दैट योर कस्टम इज अलाउड टू द स्पिंडा मैरिज एंड प्रोहिबिटेड मैरिजेस, देन यू कांट ट्रीट देम एज अ वॉइड, तो वो वैलिड रहेगा. ठीक है. सेम कंसेप्ट डिवोर्स का है कि अगर कुछ ऐसा स्पेशल रिचुअल्स है किसी कम्युनिटी का और वो काफी टाइम से चला आ रहा है, then you are allowed with it. ठीक है. no one can restrict to you. ठीक है जी. अब आते हैं डिवोर्स इन मुस्लिम लॉ. थोड़ा सा मुस्लिम लॉ का कॉम्प्लिकेटेड है. लेट मी ओपन अनदर पेज. चलो इसी में ही करते हैं. वेट. देखो दो तरीके की डिवोर्स हैं, तलाकुल सुन्नत और बिद्दत. ठीक है जी. सुन्नत अच्छा वाला है, बिद्दत समहाउ नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट दैट मच एक्सेप्टेबल. फिर इसमें भी दो है, तलाक ए हसन और तलाक हसन. ठीक है जी.
तलाक हसन में अब थोड़ा सा इसे दिमाग सुनना कि तलाक हसन में क्या होगा कि यू प्रोनाउंस द तलाक 3 टाइम्स, तलाक तलाक तलाक, या फिर एक बार आपने तलाक कहा, और नाउ यू आर हैव टू बी वेट फॉर द 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल। 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल का आप अब वेट करेंगे। अगर इन 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल तक आप सेक्सुअल कोहैबिटेट कर लेते हैं, इंटरकोर्स कर लेते हैं, देन तलाक हैज बीन रिवर्क्ड, तलाक नहीं हुआ फिर। लेकिन अगर 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल तक यू नॉट मेक एनी फिजिकल रिलेशनशिप, नाउ इन द थर्ड मेंस्ट्रुअल कंप्लीशन ऑफ द थर्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, तलाक हैज बीन कंप्लीट। क्लियर? एक बार स्टार्टिंग में बोल दिया, फिर 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल का वेट करा। एक बार यहाँ पे हम देख लेते हैं, वेट 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 वेट, लिख नहीं रखा क्या? छोड़िए, ठीक है। दूसरे पे आते हैं, हसन पे। हसन में क्या होगा, लाइक सिमिलर ऐसा ही है, बस यहाँ पे क्या होगा कि एक बार आपने अब तलाक बोला, दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल का वेट करा, जैसे ही दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हुई या फिर दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल छूटी, फिर दोबारा से तलाक बोला, फिर वेट करा, फिर तीसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला, ऐसे 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल पे 3 बार तलाक बोल दोगे आप। और ड्यूरिंग दैट पीरियड यू नेवर बी मेक अ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द पार्टनर, तो थर्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आपका वो तलाक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, दैट इज द हसन तलाक। दीज आर द एक्सेप्टेबल फॉर्म एंड यू कैन लुक लाइक द फेमिनिज्म एंड द कूलिंग पीरियड बिटवीन देम, कि अगर किसी हस्बैंड ने किसी प्रोवोकेशन में बोल भी दिया तो उसे 3 महीने का लगभग कूलिंग पीरियड दिया गया कि कोई बात नहीं, लेट इट बी ऑफ, उसे इतना ना लंबा खींचे। अगर 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल तक भी ऐसा ही हो रहा है तो फिर भाई वो दे आर नॉट वांट टू बी लिव टुगेदर। क्लियर? इसमें था सर ये क्या चीज? प्रीमेंस्ट्रुअल टाइम इसके लिए, साइकिल के लिए। मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हो आप? सर ये किसमें था, ये टाइम जो 3 मंथ का जो इन्होंने दिया मेंस्ट्रुअल टाइम का? ये मेंस्ट्रुअल साइकिल तलाक है हसन, और ये हसन में है, कुरान की वर्डिंग्स हैं ये। हसन में है सर। हाँ, हसन में तो आप हर मेंस्ट्रुअल साइकिल पे तलाक बोलोगे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे। ऐसन में आप एक बार बोल दोगे और तीनों साइकिल का वेट करोगे। ठीक है, बस इतना फर्क है। हसन और ए हसन। हाँ, ए हसन में एक बार बोला और हसन में तीनों बार बोला, इस तरीके से याद रख लो। मेंस्ट्रुअल साइकिल 3 है दोनों में। अच्छा, ए हसन में एक ही बार 3 टाइम बोल दिया। हाँ, और हसन में आपने हर बार बोला, हर मंथ के लिए। हर मंथ की मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, हाँ जी। नाउ वी कम विद द बिद्दत पीरियड। बिद्दत पीरियड इज लाइक ट्रिपल तलाक। तलाक बिद्दत में ट्रिपल तलाक आता है आपका। यू जस्ट said 3 words to your wife, talaq talaq talaq, and the talaq has been done. When you say that these 3 words in a single time, the hadith and Quran, some of the whatever be there the source, they say that when you say the 3 things in a single time, you collaborate the whole menstrual cycle and the talaq has been done. Nothing is left with you. क्लियर? जैसे ही आपने यहाँ पे सपोज यहाँ पे आपने तलाक बोला, तलाक हो गया, अब ये तलाक हो गया इर्रिवोकेबल। यहाँ से अब इद्दत पीरियड स्टार्ट हो गया। इद्दत पीरियड होता है वेटिंग के लिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का वेट करा जाए। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गई तो इसका मतलब शी इज नॉट प्रेग्नेंट। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आई तो शी इज प्रेग्नेंट, देन यू हैव टू बी वेट टिल द डिलीवरी। तो डिलीवरी तक आप उसे मेंटेनेंस देंगे। ठीक है, ये ट्रिपल तलाक है। ट्रिपल तलाक इज इर्रिवोकेबल तलाक। एक बार हो गया, अब ये रिवोक नहीं हो सकता। और इसमें होता है हलाला का कंसेप्ट। हलाला इज लाइक दैट कि व्हेन यू गिव द ट्रिपल तलाक टू समवन, यू कांट टेक बैक हर विद यू एट एनी कॉस्ट। इफ यू वांट टू टेक बैक हर, शी हैव टू बी मैरिड टू अनदर गाय, हैव मेक अ वन नाइट विद हिम, then she will be get the divorce from that another guy, then you can marry her. कंप्लीट ये सिक्योर है कि पहले किसी से शादी करेंगे,
उसके साथ एक रात रहेंगे, फिर वो डिवोर्स देगा, तब आपसे शादी हो सकती है। ठीक है, तो ट्रिपल तलाक में गलती का कोई चांस नहीं है। ठीक है जी। तो थ्री प्रोनाउंसमेंट और इर्रेवोकेबल तलाक को ही हम ट्रिपल तलाक कहते हैं। क्लियर? दैट इज द तलाकुल सुन्नत एंड तलाकुल बिद्दत। ये जो तलाक थे ये थे मैन फॉर्म तलाक। इतनी क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? चलो आगे चलते हैं। अब मेंस के बाद आते हैं दूसरे टाइप के तलाक से, जो एक तरीके से रजामंदी से या फिर एक दूसरे की कंडीशंस के साथ हो रहा है। पहला आता है तलाक तफीज, या फिर मैं कहता हूँ डेलीगेटेड तलाक। व्हेन द हस्बैंड डेलीगेट द पावर ऑफ तलाक टू हिज वाइफ और एनी अदर पर्सन, किसी को डेलीगेट कर दी मैंने अपनी पावर, देन दैट पर्सन कैन बी यूज इट, और इट कैन बी अकर्ड प्री मैरिज और पोस्ट मैरिज इन बोथ केस। ठीक है, मैंने वाइफ से कह दी कि चल तुझे कभी मुझसे कोई दिक्कत हो तो मुझे तलाक दे दी, आई डेलीगेट माई पावर एंड नाउ शी कैन यूज इट पावर, दिस पावर। ठीक है, अगला है इला और जहर। इला इज लाइक प्रॉमिस या फिर स्वेयर। हस्बैंड टेक अ स्वेयर दैट आई विल नॉट मेक अ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद माई वाइफ, और 4 महीने तक वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करता। द डिवोर्स हैज बीन डन। इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिवोर्स, कि कुछ ना करने से डिवोर्स हो गया। मैंने कसम खाई कि आज के बाद मैं अपनी वाइफ के साथ कोई फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं रहूंगा, और 4 महीने तक मैंने नहीं करा, देन द डिवोर्स हैज बीन डन। इन अ जहर, जहर इज लाइक दैट husband says that to make a sexual intercourse with the wife is like a jahar for me, because now onwards I treated my wife as a prohibited relationship। मैं अपनी वाइफ का आज से ऐसा रिश्ता समझता हूँ अपने साथ कि जो एक प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में होता है। लाइक सी इज नाउ ऑनवर्ड्स माई मदर, माँ कहने लगा वाइफ को, बहन कहने लगा। नाउ कैन से पर्सन कांट बी मैरी विद हिज मदर। सो दैट इज द थिंग, जब हमने ऐसे कोई कसम ले ली, ऐसी कोई बात कह दी, तो वो उस चीज को हमने जहर कहा। ठीक है। अच्छा, इसमें 2-3 चीजें और नहीं है, और 1-2 और टाइप होते हैं। क्या चीज? कंटिजेंट तलाक, ये ऊपर वाला, इसमें क्या क्या है? कंटिजेंट इज नॉट दैट मच। एक खुला और मुबारक 2 तरीके के होते हैं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एक होता है खुला, एक होता है मुबारक। इसे आप बेशक लिख लें। लेट मी शो यू इफ आई हैव, मैं अगर शेयर कर पाता हूँ तो लेट मी चेक। नो, चलो मैं बता देता हूँ। खुला इज लाइक अ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बिटवीन द म्यूचुअल कंसेंट एंड स्टार्ट फ्रॉम द वाइफ। वाइफ ने इंस्टांस लिया और वाइफ ने कहा कि यार मुझे तुमसे अलग होना है, एंड वाइफ इज रेडी टू पे द कंसिडरेशन टू द हस्बैंड एंड हस्बैंड टू गिव इज द डिवोर्स टू हिज वाइफ। एग्रीमेंट बना, वाइफ ने उसको कुछ पैसे वगैरह कोई भी कंसिडरेशन दी, और हस्बैंड ने उस एवज में उसे को तलाक दिया। म्यूचुअल कंसेंट से आपने डिवोर्स ले लिया। क्लियर? दैट इज खुला, कि अपनों को, अपने आप को उस बंधन से खोल दिया। ठीक है। मुबारक इज लाइक अ म्यूचुअल कंसेंट, that husband and wife both come together and they think that ki we are not now, can we now onwards can we live together, we both have to be go separate and live our life as they want। It's a complete mutual rights, mutual obligation come to an end, and they decided कि आज से तेरा मुझ पे कोई हक नहीं, मेरा तुझ पे कोई हक नहीं। that is the खुला एंड मुबारक। क्लियर? खुला और मुबारक दोनों एक ही चीज है सर? तो जो बस इतना फर्क है, जो खुला जो है ना उसकी स्टार्टिंग होगी सिर्फ वाइफ से, और इसमें हो रहा है एग्रीमेंट, कुछ कंसिडरेशन मिल रही है हस्बैंड को, और हस्बैंड कंसिडरेशन में दे रहा है डिवोर्स। वाइफ से अगर इनिशिएट होता है तो खुला है, म्यूचुअल कंसेंट से होता है तो मुबारक है। ऐसा ध्यान रख लें। ठीक है।
एक छोटा सा और है, बस उसे और ध्यान रखिए। एक होता है लियन। लियन इज लाइक दैट कि आई मेक अ फॉल्स चार्ज अगेंस्ट माई वाइफ। अडल्ट्री का मैंने वाइफ पे चार्ज लगा दिया, आरोप लगा दिया, हाँ जी सर। और वो चार्ज बाद में प्रूव नहीं हुआ। नाउ ऑन दैट ग्राउंड माई हस्बैंड मेक अ रॉन्ग चार्ज ऑन मी, आई कैन टेक अ डिवोर्स। दैट इज द लियन। क्लियर? हाँ जी सर। तो एक बार फिर से छोटा सा रिवाइज करेंगे। तलाक की हमने स्टार्टिंग करी। सबसे पहले तलाक आदमी वाले तलाक देखिए बाई मैन, तलाक सुन्नत और तलाक बिद्दत। कहाँ चले गए? हाँ जी सर। एक मिनट बस। हाँ, हमने मेन से स्टार्ट करा। तलाक सुन्नत, तलाक बिद्दत। जो सुन्नत है वो अच्छा है, बिद्दत है वो बेकार है, बी से बेकार। सुन्नत में दो तरीके, एहसन हसन। एहसन में एक बार तलाक 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 बोला और 3 मास्टर साइकिल का वेट करा। हसन में 3 अलग अलग मास्टर साइकिल पे तलाक 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 3 बार बोला गया। बिद्दत में हमने ट्रिपल तलाक पढ़ा। ट्रिपल तलाक इर्रेवोकेबल तलाक, जिस टाइम से तलाक कहा उसी टाइम तलाक हो गया, उसके बाद इद्दत पीरियड का वेट करके तलाक डन हुआ, और ट्रिपल तलाक में हलाला होता है। उसके बाद हम आए सम अनदर टाइप ऑफ। सबसे पहले हमने डेलीगेटेड तलाक या फिर तफीस तलाक देखा। तफीस से इस तरीके से आजकल कि तावीज़ बांधती है ना, किसी को दूसरे को बांधते हैं उसकी रक्षा के लिए, तो ऐसे डेलीगेट मैंने दूसरे को दिया, तलाक की पावर दी। वाइफ को मैंने तलाक की पावर दी, अब वो जब चाहे उसे यूज कर सकती है। इला इज लाइक कि आई स्वेयर, आई प्रॉमिस कि मैं आज के बाद मेक अ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद यू। इला इज लाइक जहर की आपके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना ही मेरे लिए जहर है। यू आर लाइक माई मदर, यू आर लाइक माई सिस्टर। ठीक है। देन वी गो विद द खुला, एंड बाद खुला इज लाइक द इंस्टांस कम फ्रॉम द वाइफ फॉर अ म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स। वाइफ की ने पहले स्टार्ट करी डिवोर्स की, मुबारत में दोनों ने मिलकर म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ले लिया। मुबारत मीन्स म्यूचुअल कंसेंट, and lien means make a false charge on a wife, and that false charge, after that false charge wife get the right to take the divorce from that guy. Clear? चलो अब थोड़ी सी साइकोलॉजिकल फिलोसफिकल चीज़ों पे आते हैं। थ्योरीज ऑफ डिवोर्स। सबसे पहले थ्योरी आई इंडिया में फॉल्ट थ्योरी। हमारे यहाँ डिवोर्स को अच्छा नहीं माना जाता था। वी नेवर बी टेकन एज अ ग्रांटेड कि ऐसे ही दे दिया। आजकल तो म्यूचुअल कंसेंट से ही चल रहा है जी। तो पहले था फॉल्ट थ्योरी कि अगर किसी में कुछ कमी है तो डिवोर्स मिलेगा, अदरवाइज ऐसे ही डिवोर्स नहीं मिलेगा। यू हैव टू बी प्रूव द फॉल्ट ऑफ अनदर पार्टी, देन यू कैन गेट द डिवोर्स। दैट इज द फॉल्ट थ्योरी. If I go with the consent theory that both of the party have the mutual consent, they have the no any demand from each other, they want the mutual consent, तो कोर्ट वहाँ पे उनकी बातें सुनती थी, डिसाइड करती थी, उनको वो क्या मीडिएशंस वगैरह में भेजती थी, कूलिंग पीरियड का वेट करती थी। सेक्शन 13B फॉर कूलिंग पीरियड कि भाई रुक जा, वेट कर ले पर स्टिल इफ द पार्टी सेड आई विल नॉट बी वेट, आई वांट डिवोर्स, देन द कुछ 6 महीने 1 साल के अंदर उसे डिवोर्स दे दिया जाता था। गेट इट? आजकल जो नया है रिसेंटली विद द ब्रेक डाउन थ्योरी, आई कांट लिव विद हिज और हर इन अ मिनट, रहना ही नहीं है उसके साथ, कोई कूलिंग पीरियड नहीं, जाओ और डिवोर्स ले लो। इट्स इज कम्प्लीटली नॉट पॉसिबल टू लिव। स्टार्टिंग में कोर्ट ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं करा, बट नाउ द कोर्ट रिकॉग्नाइज टू बी दैट भाई ब्रेक डाउन थ्योरी भी है और लोगों के साथ, क्योंकि देखो क्या सीन हो रहा है कि अब सबके पास ऑलरेडी कुछ अल्टरनेट अवेलेबल है। दे डोंट वांट टू वेस्ट देयर टाइम, ऑलरेडी लाइफ इतनी छोटी है, अब डिवोर्स में 3-4 साल बिता दिए, 2-3 साल बिता दिए, तो जो अल्टरनेट अवेलेबल है उसका क्या होगा, उसे भी क्या पता कोई और मिल जाए। तो इसलिए ज़रूरी है कि जल्दी जो है उसे कैप्चर कर लें और ब्रेक डाउन थ्योरी से तुरंत डिवोर्स ले लें। गेट इट? हियर वी कंप्लीट द कंसेप्ट ऑफ डिवोर्स। इतना छोड़ दें या फिर अभी आगे और कर लें? हाँ, ये पीडीएफ कंप्लीट कर ले। थोड़ा सा अब आता है रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन डिवोर्स इन इंडिया एंड मैरिज एंड डिवोर्स एंड हाउ दैट थिंग अगर इफ आई रिमेंबर सीपीसी का एक ना फॉरेन जजमेंट की रिगार्डिंग सेक्शन है, आई थिंक सेक्शन 30, नॉट श्योर, सीपीसी नॉट दैट मच श्योर। तो देखो अब फॉरेन में आपकी शादी हुई या फिर फॉरेन में डिवोर्स हुआ, उस डिक्री को कैसे माना जाएगा, क्या उसकी एक्सेप्टेंस होगी, क्या उसकी वैलिडिटी होगी, मेंटेनेंस का क्या प्रोविजन होगा।
अब फॉरेन में ना मेंटेनेंस के रिगार्डिंग बड़े स्ट्रिक्ट लॉ हैं। इफ़ यू अगर आप डिवोर्स लेते हो तो अगर आपने इनिशिएटिव लिया है तो आपकी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा डायरेक्टली आपके अपोजिट पार्टनर को मिल जाएगा। वो अपोजिट पार्टनर डिवोर्स लेता है तो उसकी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा आपको मिल जाएगा। तो क्या करते हैं ये जितने भी एनआरआईज या फिर ओवरसीज सिटीजन हैं, ये बाहर जब ऐसी सिचुएशन आती है तो तुरंत इंडिया भागते हैं केस फाइल करने के लिए। फॉरेन कंट्रीज में केस फाइल नहीं करते, स्पेशली मैन, क्योंकि वहाँ मेंटेनेंस का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है। अब सिचुएशन क्या है कि इफ़ द फॉरेन कंट्री गिव द डिवोर्स वट द कोर्ट विल सीक, तो सेक्शन 13 सीपीसी में कुछ उसने पैराडाइम्स बताए हुए हैं कि भाई अगर नेचुरल जस्टिस से उन्होंने डिसीजन दिया है, नन आर्बिट्रेरी नहीं दिया, हेयर द बोथ साइड दिया, और सिमिलर लाइक का इंडियन लॉज दिया है, नॉट दैट मच सिमिलर बट द बेसिक फंडामेंटल्स आर सिमिलर, देन वी एक्सेप्ट दैट डिग्री। और एक चीज और है, इससे पहले वो चेक करेंगे डिग्री सर्टिफाइड हो, अप्रोप्रिएट हो, फ्रॉड ना हो। अगर कोई फ्रॉड, मिसकंसेप्शन, इस तरीके की चीजें आती है तो वो डिग्री नहीं मानी जाएगी। अब आई गो विद द मैरिज कि भाई मैरिज का क्या सीन है, मैरिज अगर कोई वहां से कर रहा है तो वी ऑलवेज भी विद दैट कि अगर आपने सबसे पहले हम ये देखेंगे जो आपने शादी करी है उसको इंडिया में आपको किस मैरिज में रिकॉग्नाइज करना है। अगर आप कहते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में करना है तो भैया हिंदू की कोई सेरेमनी हो रखी हो, दोनों पार्टी हिंदू हो, और हिंदू की जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, वो आपने फुलफिल करे हो। मुस्लिम में है तो उनके हिसाब से, मुस्लिम लॉज के हिसाब से उन्होंने रख रखा हो, किताब या नन किताब या जो हमने पढ़ा था सिया सुनने के हिसाब से, यू हैव टू बी फॉलो इट। तो जिस रिलीजन में आप फॉलो करवाना चाहते हैं वो हो। अगर किसी में नहीं करवाना चाहते, स्पेशल मैरिज एक्ट में कराना चाहते हैं, तो यू कैन कम एंड रजिस्टर्ड योर मैरिज एज पर द नॉर्म्स ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट। आप अपनी मैरिज रजिस्टर्ड करा सकते हो, बट आफ्टर दैट रजिस्ट्रेशन द लॉज विद योर फैमिली आल्सो बी अप्लाई विद द स्पेशल लॉज, नॉट विद द रिलीजियस लॉ। फिर आप बैक नहीं जा सकते, सिंपल इज दैट कि आप ये कहें कि अब तो मैं रजिस्टर्ड तो स्पेशल मैरिज एक्ट में हो गई और हिंदू सक्सेशन एक्ट फॉलो करूंगा, इट विल नॉट बी, फिर इंडियन सक्सेशन एक्ट लगेगा। ठीक है, इतना बस ध्यान रखना है विद रिगार्डिंग द फॉरेन जजमेंट एंड फॉरेन थिंग्स, गेट इट। अगर ये सारी चीजें फुलफिल होती है तो वो फॉरेन जजमेंट इफेक्टिव भी है, बाइंडिंग भी है। ठीक है, अगर वो फुलफिल नहीं होती तो वो इफेक्टिव नहीं है, ना तो वो लीगल इफेक्टिव होगी ना बाइंडिंग होगी। क्लियर? चलो, कोई डाउट अब? ओके देन, बाय।